بھارت نے گزشتہ روز سیلاب کا انتباہ سینتاز کمیشن کے ذریعے نہیں دیا، سفارتی ذریعے سے سیلاب کے بارے میں آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں بھارت پر لازم ہے وہ سینتاز معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرے۔ بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ معطل رکھنا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا بھارت کا یہ اقدام جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر انتہائی منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ بھارت نے دریائے طویل میں جموں پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کو سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن نے آگاہ کیا۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستان کی حدود میں داخل، جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح اچانک بلند، نچلے درجے کا سیلاب، ریلا آج رات شاہدرہ سے گزرے گا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پہلے ہی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ منصوبہ ناقابل قبول، امن کے لیے خطرہ ہے۔ نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطین کے لیے OIC وزیر خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا فلسطین میں قحط کی صورتحال فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ عالمی برادری فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ اسپتالوں، اسکولوں، کیمپس پر حملے انسانی قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں۔ ہنگامی اجلاس کے انعقاد پر ترکیہ، ایران اور فلسطین کے شکر گزار ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے غزہ پر قبضے کے اسرائیلی بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گریٹر اسرائیل ویژن ناقابل قبول ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ چیئرمین OIC نے کہا اسرائیل کو غزہ پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کو روکنا ہوگا۔ فلسطینی عوام کو ہماری اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ فلسطینی نمائندے کا کہنا تھا فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کو پکار رہی ہے۔ فلسطینیوں کو یقین ہے امہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ غزہ پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ اسرائیل کے غزہ کے النصر اسپتال پر حملے، 5 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے پیر کو النصر اسپتال کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہاں سے ایک شہید کی لاش نکالی جا رہی تھی۔ حملے میں رائٹرز کے کیمرامین حسام المصری، AP اور دی انڈیپینڈنٹ کے نامہ نگار مریم ابو دکا، NBC نیٹ ورک کے صحافی ابو طاہا اور الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ شامل ہیں۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کی تعداد 245 ہو گئی۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود الموٹ کی نیتن یاہو پر تنقید، کہا غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جنگ یرغمالیوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ اور اسرائیلیوں کے لیے موت کا پھندا بن رہی ہے۔ اس جنگ میں بلا جواز ہزاروں فلسطینی مارے گئے۔ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے جرم میں PTI رہنماؤں کو سزا، شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، کمل شوزب سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ 16 کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ زین قریشی اور فواد چودھری سمیت 34 ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصل آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے چوتھے کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا مقدمہ 9 مئی 2023 کو تھانہ سمن آباد میں درج کیا گیا تھا۔ ملک کی صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ سیاسی کشمکش اب تک ختم نہیں ہوئی۔ ہماری کوشش ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن کوئی ٹھیک کرنا نہیں چاہتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں گرفتاریوں سے سیاسی تناؤ مزید بڑھ رہا ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو بڑے بھائی کی طرح سپورٹ کرے۔ وفاقی حکومت نے جو امداد کی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل PTI کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کل بانی PTI سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کروں گا۔ پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ ہنگامہ آرائی، مار پیٹ اور قتل کی دھمکیوں کا کیس۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر کا جمعرات تک جسمانی ریمانڈ منظور۔
एटीसी कराची का आइंदा समात पर मुल्जिमान को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म। जज ने पूछा, जिन्हें मारा है वो किस इदारे के हालकार थे, क्या काम कर रहे थे? प्रोसिक्यूटर इदारे के हवाले से जवाब न दे सके। बताया वो फाइबर केबल का काम कर रहे थे। अदालत ने मुल्जिमान से पूछा, आपके वकील कहाँ हैं? जनेसा टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर ने जवाब दिया, हमारा वकील नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब का राब्ता। तूफानी बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत के साथ सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश की। सिकंदर मोहनी ने कहा, पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इज़हार यकजहती पर ईरानी हममनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियां और गम साझे हैं। तबाहकुन सैलाब के एक हफ्ते बाद 20 वाट के मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़ और मलबा मौजूद। भारी मशीनरी के साथ लोग अपनी मददात के तहत भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल कहते हैं, इमदादी काम 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। शाराए गज़र की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, तारीदास में मुतासिरीन के लिए खैमे लगा दिए। बेघर मकीनों की आबादकारी का वाहिद हल मुतबादिल विलेज का कयाम है। जीबी हुकूमत विफाक के साथ मिलकर मुतासिरीन के लिए मुतबादिल विलेज बनाएगी। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासिरीन में अशया खुरनूर समेत दीगर सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासिरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासिरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। कैशलेस मईशत से करप्शन का खात्मा और मुल्क तेजी से आगे बढ़ेगा। कैशलेस मईशत से मुतालिक हर माह 2 बार इजलास हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, BISP के तहत डिजिटल वॉलेट्स का कयाम अहम पेशरफ्त है। BISP में जिद्दत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की अक्कासी है। प्रोग्राम मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है, मकबूजा कश्मीर में गैर मुकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिक इत्तलात हैं। दहशत गर्दों को लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जंगलात में भारतीय फौजी अड्डों, ट्रेनिंग एरियाज के करीब देखा गया। दहशत गर्द आपस में पश्तो और दरी जबानों में बात करते हैं। गैर मुल्की दहशत गर्द कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग के लिए इस्तेमाल होंगे। आलमी बरादरी मशकूक कैंप्स और मशकूक गैर मुल्कियों पर सवाल उठाए। पाकिस्तान ने रॉ के मज़मूम मकासद पर मबनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी से शेयर कर दी। आलमी बरादरी दोस्त ममालिक को रॉ पर नजर रखने के लिए मरासला अरसाल कर दिया। पुनेर की तहसील डगर में पिकअप खाई में गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हादसा गोकन के इलाके फुलवाड़ी में पेश आया। कराची के डिग रोड अंडरपास में मिनी बस की 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बायस हुआ। ड्राइवर को गिरफ्तार करके बस तहवील में ले ली। गुजरात के नवाही गांव खोखा स्टाफ पर कोस्टर की छत से गिरकर 2 भाई जाँ बहक। दोनों भाई 10वीं जमात के तालिब इल्म थे। खानदान के दीगर लोगों के साथ जहलम से वापस अपने गांव कोट अमीर हुसैन आ रहे थे। पुलिस का कहना है कोस्टर तेज रफ्तार डंपर से टकराकर दरख्त से जा लगी। कोस्टर और डंपर ड्राइवर को गाड़ियों समेत हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में क्रिस्टल लाइन बस अड्डे पर खातून ड्राइवर से बेकाबू होने वाली बस की CCTV सामने आ गई। रिक्शे, गाड़ियां, मोटरसाइकिल सवार और राहगीर जद में आई। इरशाद हुसैन नामी शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। थाना पीर बधाई में ड्राइवर रजिया सुल्ताना समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज है।
फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की तालिबा दूसरी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। पुलिस ने तालिबा की खुदकुशी या कत्ल के पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। 19 साला माहम आज सुबह उर्दू ब्लॉक की दूसरी मंजिल से नीचे गिरी थी। मुजफ्फरगढ़ में बहन को तंग करने से मना करने पर गुंडागर्दी, 2 बाशों का नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद, नौजवान की एक टांग काटना पड़ी। लड़के की मां का कहना है पुलिस बासर मुलजमान को गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस ने थाना कुरैशी में मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स आमद। शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर दाखिला वजीर आला अली अमीन गंडापुर IGKP ने शहदा के जस्ते खाकी पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी का कहना था जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जिस दिलेरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का मुकाबला किया गया वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में थाईलैंड में इशाइया तकरीब के मेजबान साबिक थाई वज़ीर-ए-आज़म ने मरियम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम किया। पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और अवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा जिलाई ADB के 55 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। रवा साल जिलाई ADB की जो स्कीमें शुरू हों मुकम्मल भी इसी साल की जाएं। अजला की तरक्की बहुत जरूरी है जिस पर हुकूमत फोकस कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टुसरी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास कोई खास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात नहीं है, लेकिन सूबे के आईनी सरबराह के तौर पर जब किसी को हिदायत दी तो उसने अमल किया। गवर्नर हाउस से कभी कोई जाती काम नहीं किया, न ही अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम किया। ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह के सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। दरबार पर दुरूद सलाम और महाफिल समा का एहतमाम। इख्तितामी दुआ आज बाद नमाज असर होगी। इससे पहले मजार की चादर पोशी की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानों की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। PCB तर्जुमान का कहना है कप्तानों की तब्दीली से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, न ही सिलेक्शन कमेटी में इस हवाले से कोई मामला ज़ेर गौर आया। रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की खबरें गलत हैं। शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान नहीं बनाया जा रहा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तानी करेंगी। वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम जनूबी अफ्रीका से लाहौर में 3 वनडे खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से होगा। पाकिस्तान टीम के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त और तैयारियां तेज। UAE की कंडीशंस में शाहीनों की खूब ट्रेनिंग। मैच प्रैक्टिस हासिल करने के लिए पाकिस्तान टीम आज इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ट्राई सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। रोमान और मज़ाहमत के शायर अहमद फराज के मद्दाह आज उनकी 17वीं बरसी मना रहे हैं। शानदार अदबी खिदमत पर अहमद फराज को सितारा इम्तियाज समेत मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया।